लास्ट लेक्चर में ग्राफ डिस्कस कर रहे थे हम लोग. Yes, sir. Start with that only. शायद मैंने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया था एंड आई हैव आस्क्ड यू टू कन्वर्ट दैट इनटू वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. ये हमने किया था लास्ट टाइम. एक क्वेश्चन बना तो उसी तरीके से. लेट्स से कि मैंने आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करके दे दिया है एंड इस एक्सिस पे वी आर हैविंग टाइम और इधर की तरफ हमारा एक्सेलरेशन है. टाइम हम लोग सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं और एक्सेलरेशन वी आर मेजरिंग इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम को हम लोग मेजर कर रहे हैं सेकंड्स में. और मान लो मैंने ग्राफ ऐसे प्लॉट करके दिया आपको. So this is my time here. I have given is 2 seconds. So यहाँ पे टाइम मेरा 2 seconds है और इस इंटरवल में जब मेरा एक्सेलरेशन 0, so this time is given that is 4 seconds. And here ये टाइम मान लो आपको दिया मैंने 6 सेकेंड एंड दिस इज ऑफ 8 seconds. ऐसा हमने टाइमिंग आपको दे दिया. ठीक है. Now let's say कि this acceleration which I have given here is of 10 meter per second square, the acceleration over here, and the acceleration here is of 5 meter per second square, and acceleration here is of minus 5 meter per second square. So we are having the acceleration as minus 5 meter per second square. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, I have given you this acceleration versus time graph. Now I am asking you to trace the velocity versus time and displacement versus time graph if the particle is starting from origin or initially particle was at rest. So question में दिया आपको मैंने initially particle is at rest. So initially particle is at rest. आपसे पूछा गया trace number 1 velocity versus time graph and number 2 displacement versus time graph. Go ahead with the calculation. मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ. पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट था एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. इनिशियली पार्टिकल वाज एट रेस्ट एंड एट ओरिजिन. ओके, तेजस रिजॉइन करो बेटा, नो प्रॉब्लम. मयूर हो रहा है? Yes, sir. Okay, just wait for a minute. चलो मैं भी करता हूँ, साथ में मिलके करेंगे इसको.
So the first thing is that we have to plot velocity versus time graph in this first part. So सबसे पहले हमें plot करना है velocity versus time graph में. Okay. Now you tell me one thing. मैं आपसे पूछते जाऊंगा, आप मुझे बताते चलो. Between 0 second to 2 second, the first time interval between 0 second to 2 second, velocity positive है या negative है? Positive. And is it increasing कि decreasing? Increasing. How you have decided this? कैसे decide किया आपने? Acceleration positive है और constant है ना, तो मेरा velocity इस केस में increase करेगा, right? Yes, sir. अगर मैं इसको plot कर दूं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ग्राफ को. So let's have this. इधर की तरफ मेरा एक्सिस में टाइम हो गया. So here we are having time and that to be in seconds. और इधर मेरे पास हो गया velocity and this to be in meter per seconds. Okay, super. So पहली बात तो मुझे क्लैरिटी आ गया कि 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक मेरा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा. सो वेलोसिटी विल इंक्रीज फ्रॉम 0 सेकंड टू 2 सेकंड्स. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, नाउ 2 सेकंड के करस्पॉन्डिंग व्हाट विल बी द वेलोसिटी? 20 meter per second. हाउ यू हैव डन दिस? कैसे कैलकुलेट किया? सर एरिया कैलकुलेट किया. बहुत बढ़िया. एरिया कैलकुलेट कर दो या v इज इक्वल टू u प्लस at कैलकुलेट कर दो, व्हाटएवर यू वांट. सो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा वेलोसिटी आ गया, दैट इज ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. सुपर. नाउ फ्रॉम 2 सेकंड टू 4 सेकंड, इस रेंज में, इस टाइम इंटरवल में, व्हाट विल बी वेलोसिटी? Constant. व्हाई? Sir, acceleration is zero. एक्सेलरेशन इज 0. वेरी गुड धारा, बहुत बढ़िया. So, इस इंटरवल में मेरा एक्सेलरेशन 0 है, and since acceleration is 0, therefore of course velocity will remain constant. So this is up to the time interval of 4 seconds. Okay, agreed. Now what will happen between 4 second to 6 second? So velocity will be increasing. Velocity will be again increasing. So right, so, इसके बाद velocity will be increasing. So let's say velocity has increased, right? And this time interval is of 6 seconds. Okay. Now, what will be the velocity corresponding to this time interval? What will be velocity corresponding to this time? So 30 meter per second. Just calculate the area. So this area will be 5 into 2, which is 10, and already it 20 pe tha, so 20 plus another 10. So will it be equal to 30 meter per second velocity? Okay. Now, what will happen from 6 second to 8 second in this time interval, 6 to 8? Velocity will increase or decrease? Decrease. Because acceleration becomes negative, so velocity will start decreasing. Okay, so velocity decrease karega. Chalo, decrease kar gaya velocity. 8 second pe this will be my velocity. What will be the velocity beta at 8 second? 20 meter per second. Again, it will be 20. If you calculate the area, this will be minus 10. तो ये plus 10 था, 30 में से minus 10 करना पड़ेगा मुझे. So will this become? तो क्या यहाँ का भी जो मेरा velocity होगा, will it be equal to 20 meter per second? Yes or no, everyone? Sarvesh, Mayur, clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Very good, Ashan. 6 सेकंड से लेकर 8 सेकंड के बीच में वेलोसिटी मेरा डिक्रीज कर रहा है, और 6 सेकंड से लेकर 8 सेकंड के बीच में why velocity is decreasing? Because in that time interval the acceleration was negative and velocity was positive. So acceleration or velocity, they are in opposite direction. So therefore the magnitude of velocity will decrease. Okay, मुझे बताओ किसी को भी, गायत्री, सर्वेश, किसी को भी, राहुल, any doubt in this velocity versus time graph from acceleration versus time graph? No, sir. Sure. Now we'll go for the plot of displacement versus time graph, second part. Plot करेंगे अगला ST graph. Okay, displacement versus time graph will plot. So here we are having time, और इस एक्सिस पे मेरे पास क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वी आर हैविंग हियर, राइट? इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट है और इस एक्सिस पे टाइम है. चलो प्लॉट करते हैं.
बताइए फर्स्ट इंटरवल में 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में जो ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, विल इट बी कॉन्केव अप की कॉन्केव डाउन की स्ट्रेट लाइन? 0 Concave up. सेकेंड कॉन्केव। Concave up. हाउ Concave यू हैव up. डिसाइडेड? कैसे डिसाइड किया अप की डाउन? Acceleration is Acceleration. positive. So if acceleration is positive between 0 second to 2 seconds, so therefore Acceleration. हाँ करेक्ट. So ग्राफ जो मेरा होगा यहाँ पे will be concave up. I'll do it by blue color. So इस इंटरवल में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा that will be concave up. Okay. हाँ सुपर हुजैफ, बहुत बढ़िया बेटा. अच्छा 2 सेकंड पे इसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 20 meter. 20 meters. हाँ, how we have done this? तो इसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे, हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट इज 20, सो हाफ इंटू 2 इंटू 20, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट विल गिव अस 20 मीटर. आई होप आपको समझ रहा है ये बात. एरिया सबको क्लियर हो गया? शुड आई कैलकुलेट की इज इट क्लियर? सर क्लियर है. ओके मुझे बताओ 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में, बिटवीन दिस टाइम 2 सेकंड टू 4 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी व्हाट? कैसा ग्राफ होगा? कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन की स्ट्रेट लाइन? Straight. Straight Straight line. line. Straight line. Superb. Oh, I'll have to replot this. So इसके बाद मेरा जो ग्राफ बनेगा 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक, that will be straight line, and white will be straight line. I hope you are clear with this. Okay. इसके सामने का ये डिस्प्लेसमेंट Acceleration. हाँ 60 meters. 60 meter. Just get the area. So 4 minus 2 is 2. 2 into 2 20 is what? 40, and already 20 पे था. So yes, super. बहुत बढ़िया. Will it be 60 meter बेटा? Yes sir. चलो great. अब मुझे बताइए what will be the graph from 4 second to 6 second? 4 second to 6 second. Will it be Concave up. concave? Concave up. Concave. Super. So again थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं. Again this graph will be concave up. It's not correct. Yes. Am I clear? This will be the graph. थोड़ा सा ही ज्यादा बेंड हो गया, इतना बेंड नहीं होता. बेंड होगा तो स्लोप चेंज हो जाएगा. थोड़ा सा फ्लैट रखते हैं. हाँ बरोबर है. So this will be my 6 second. Okay. बताओ बेटा 6 second के corresponding what will be displacement? 110 meters. 110 meters. कैसे कैलकुलेट किया धारा? एरिया निकाला ना इसका? Yes, sir. Okay. What will be area of this? 6 minus 2 is 2 into 10. So क्या इसका एरिया 10 आया? 10 meters. And if you get this area, this will be 40. So 40 meter plus 10 meter मतलब 50 meter, और 60 plus 50 is 110. Excellent. Super. बहुत बढ़िया. So this will be, थोड़ा सा मुझे इसको extend करना पड़ेगा. This will be 110 meters. बाकी लोगों को समझ में आया भाई कैसे किया मैंने ये एरिया? How I calculated this? Yes, sir. Okay. Anyone किसी को डाउट है एरिया के कैलकुलेशन में तो मुझे पूछो. 110 वाला एरिया कैलकुलेट करके बताओ. हाँ समझो मुझे. चलो करता हूँ. इधर आपका डिस्प्लेसमेंट था. देखो ये एरिया कैलकुलेट करते हैं. इस एरिया को कैलकुलेट करने का दो तरीका है. या तो आप ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो, हाफ इंटू सम ऑफ, हाफ 1 सेकेंड ना कबीर, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. चाहो तो वैसे कर दो, या फिर यू कैन ऑल्सो गेट दिस एरिया लाइक दिस. ये मेरा ट्राइंगल है, इतना वाला पार्ट ये ट्राइंगल है. सो ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो इसका बेस हो जाएगा 6 minus 4, दैट इज 2 इंटू हाइट, 30 minus 20 which is 10. So इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 10. दिस 2 and 2 will get cancelled, so that will be equal to 10 meter. ठीक है. अगर आपको इसका एरिया निकालना कैसे करोगे? 6 minus 4 that is 2 and 2 into 20, so length into width, so 20 into 2 will it be equal to 40 meter? So Yes, sir. this has become my 40, this is my 10, so 40 plus 10 that is 50. और वो पहले से 60 मीटर पे था, तो 60 में और आप 50 को ऐड कर दोगे, that will be 110 meters. Got it sir. Super. Got it sir. Excellent. चलो
सेम वे में आप इसका भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, खुद से ही करना। अच्छा, अब उसके बाद मुझे बताइए, ये 6 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक ग्राफ कॉनकेव अप होगा, कॉनकेव डाउन होगा? Concave Concave down. down. Concave down. आप सबको समझ गया है बात, क्यों कॉनकेव डाउन हो रहा है? बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव अच्छा, लेकिन ग्राफ तो कॉनकेव डाउन हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव हो गया? नेगेटिव सोच के बोलना। सर आराम से। पॉजिटिव ही होगी। क्यों पॉजिटिव क्यों होगा? पहली बात, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं, टेक टाइम, आराम से ठंडे दिमाग से सोच समझ के बोलो, घाई नहीं करना है। हाँ, 6 सेकंड से लेकर 8 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन तो मेरा नेगेटिव है, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी आपसे ये है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है 6 to 8 के बीच में? पॉजिटिव। कैसे कबीर, पॉजिटिव कैसे बेटा? एक्सीलरेशन डिक्रीज हुआ होगा तो भी सर वो आगे ही जाता होगा ना, हाँ, ये कैसे डिसाइड किया कि आगे ही जा रहा है वो? डायरेक्शन चेंज। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, चलो आगे बढ़ो। ये कैसे डिसाइड किया कि वो आगे ही जा रहा है? So cause of velocity. एंड यस, सुपर्ब। आप देखो 6 सेकंड से लेकर 8 सेकंड के बीच में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 6 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, ये देखो इसके ऊपर है, तो ये इस इंटरवल में पॉजिटिव हाँ, ये बात सही है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वो मैं मानता हूँ बात, वेलोसिटी घट रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव। सो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल, वो बराबर है कि घट रहा है वो, लेकिन वेलोसिटी है तो पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल आगे ही जा रहा होगा, लेकिन इसके बाद जो ग्राफ हो जाएगा दैट विल बी कॉनकेव डाउन। आफ्टर दिस 6 सेकंड के बाद जो ग्राफ बनेगा, दिस ग्राफ विल बी कॉनकेव डाउन। दिस विल बी माय 8 सेकंड। Am I clear? और इसके करस्पॉन्डिंग कितना वेलोसिटी हो जाएगा आपका? Sorry, what will be the displacement corresponding to this? 160. 160 एरिया निकाल लेते 160. हैं। ओके, दिस विल बी अगेन 10 मीटर, सेम वे में जैसे हमने इसका कैलकुलेशन किया था, हाफ इंटू 6, 8 माइनस 6 इज 2, 2 इंटू 10 विल बी 10, और इसका अगेन हो जाएगा 40 मीटर। सो 40 मीटर प्लस 10 मीटर दैट विल बी 50 मीटर। एक मिनट कबीर, कबीर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था बेटा कि पार्टिकल किसके डायरेक्शन में चलता है? पार्टिकल वेलोसिटी के डायरेक्शन में चलता है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चलता है? वेलोसिटी वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ ये बात सही है कबीर की, वेलोसिटी को कम ज्यादा करने का फैक्टर मेरा एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फेवर में होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन भी उधर ही लग रहा है तो वेलोसिटी को बढ़ा देगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तब वो वेलोसिटी को घटा देगा, राइट? ये बराबर बात है, लेकिन पार्टिकल उधर ही चलेगा जिधर वेलोसिटी है, चाहे वो वेलोसिटी इंक्रीज करे या वेलोसिटी डिक्रीज करे, उससे कोई लेना देना नहीं। इज इट क्लियर बेटा? सो अगर वो पार्टिकल डी एक्सेलरेट भी कर रहा है और वेलोसिटी अगर पॉजिटिव साइड में है, तो पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। कबीर, इज इट क्लियर? यस सर। Okay, so for 10 meter plus 40 meter that will give us 50 meter, और 110 plus 50 ऐड कर दोगे तो corresponding कितना हो जाएगा? 160 meter. This is a good question. Am I clear precisely, everyone? Am I clear to everyone? सबको समझा बेटा कैलकुलेशन? Yes, sir. Yes, sir. sir. अब मुझे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बना लोगे, इस तरह का आएगा। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके आपसे पूछता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है, जेई का आया हुआ सवाल है जो मैं भी ले रहा हूँ। अ पार्टिकल starts from rest and accelerates at the rate of alpha
meter per second square, and then deaccelerates at the rate of beta meter per second square, and finally comes to rest. And finally comes to rest, है ना. So एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया एक्सेलरेट करना, थोड़ी देर तक एक्सेलरेट किया और बाद में डी एक्सेलरेट किया बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और फाइनली रेस्ट में आ गया. ठीक है, आपसे पूछा गया है इफ टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल is t seconds, अगर टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल मतलब रेस्ट से स्टार्ट होकर रेस्ट पे जाने में टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल t सेकंड्स था, सो फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इन ट्रिप, मतलब पूरे जब वो ट्रिप में था तो उस ट्रिप में पार्टिकल कितना मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर पाया, कितने मैक्सिमम वेलोसिटी पे गया, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड and total distance traveled. क्वेश्चन समझ में आया सभी को? दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन. अब मुझे ईयर याद नहीं है कब पूछा है, क्वेश्चन यही था. सो एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया है और वापस वो रेस्ट में चला गया, थोड़ी देर तक वो अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया और उसके बाद वो बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेट किया. तो पूछा जा रहा है आपसे कि पूरे ट्रिप में वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या अटेन कर पाया और कितना वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. You can do it by graph also. Very helpful for you. मैं करूं बेटा? पहले क्वेश्चन समझाऊं आपको क्या पूछ रहा है, देखिएगा अच्छे से, बन जाएगा तुम लोग से सिर्फ अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो. क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, जिसका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था. सो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, थोड़ी देर तक सम टाइम तक वो एक्सेलरेट किया और वो एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. सो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होगा और थोड़ी देर तक वो एक्सेलरेट किया अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करते गया. उसके बाद वो क्या कर रहा है कि फिर बाद में आफ्टर सम टाइम दिस हैज स्टार्टेड डी एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो थोड़ी देर तक तो एक्सेलरेट किया अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, उसके बाद वो डी एक्सेलरेट किया बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये डी एक्सेलरेट करने के बाद फाइनली आके रुक गया. और यहां से यहां जाने में जो इसको टोटल टाइम लगा वो टी सेकेंड्स का था. सो इसको जो टाइम लगा यहां से यहां जाने में वो टी सेकेंड्स का है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी वो कितना अटेन करेगा और बाद में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल. क्वेश्चन समझा सभी को? यस सर. ओके, देखता हूँ तेजस करके देखता हूँ बेटा. चलिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे मैं करता हूँ, मैं ग्राफ से करता हूँ. 2 मेथड बताता हूँ आपको, पहले ओरली डिस्कस करते हैं. मुझे एक बात बता बेटा, यहाँ से अगर ये पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया है फ्रॉम हियर और ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो जब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करते 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 जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या इसका वेलोसिटी यहाँ पे आने के बाद मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पहले तो एक्सेलरेट कर रहा था. और अगर ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा था, हाँ बीटा विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज डी एक्सेलरेटिंग. तेजस नहीं कबीर बोल नहीं सकते कि t/2 पे होगा,
अल्फा इंटू टी बाई टू। लेट्स सी बेटा, मुझे आप एक बात बताओ, क्या यहां से जब पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ता जा रहा था तो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा था? अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा था मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा था। वेलोसिटी इंक्रीज 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 करते करते यहाँ पे जब ये पार्टिकल पहुंचा तो इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया और उसके बाद फिर वो डी एक्सेलरेट करने लगा। सो वेलोसिटी विल बी स्टार्टिंग डिक्रीजिंग, घटने लगेगा वेलोसिटी, और घटते घटते फाइनली कहाँ पे आ गया? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, बगैर ग्राफ के भी बना सकते हो, ग्राफ से भी बना सकते हो, ग्राफ से थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। आप देखिए, इस एक्सिस पे मेरे पास टाइम है इधर, और इस एक्सिस पे वेलोसिटी है ना, इधर वेलोसिटी इधर टाइम। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सेलरेट कर रहा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा और बाद में फिर वो डी एक्सेलरेट करना चालू किया और वेलोसिटी आके उसका 0 हो जाएगा, राइट। और ऑब्वियस सी बात है, आपको ये दिख रहा है कि यही आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है जो आपको कैलकुलेट करना है, राइट। मान लेते हैं कि ये जो एक्सेलरेट करने का टाइम था ये t1 था और डी एक्सेलरेट करने का टाइम t2 है और टोटल टाइम आपको दिया हुआ है t सेकेंड्स का। वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही है। इज इट क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देता है? Displacement. Acceleration. Acceleration. हाँ, वेलोसिटी, Acceleration. करेक्ट। वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। अब देखो खुद से सोच के, अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूँ इस चीजों को, सी इस वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं, सिर्फ ए से लेकर बी तक, एंड दिस इज सी। सो अगर मैं ए बी पार्ट में डिस्कस करूं इस वाले इंटरवल में, तो यहाँ पे ये मेरा स्लोप हो जाएगा और यही स्लोप जो आपको होगा θ1, लेट्स से। सो tan θ1 विल बी इक्वल टू व्हाट? tan θ1 will be equal to BD by AD, right? So can we say that tan θ1 will be equal to BD मेरा हो जाएगा V max by time आपको लग रहा है T1, और tan θ मतलब स्लोप हो गया θ1, and that is equal to acceleration which is alpha, दिया है already. So alpha is equal to V max by T1, और can I say बेटा कि T1 will be equal to V maximum by alpha? Yes, sir. Okay. सेम वे में अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, अगर सेम वे में आप इधर कैलकुलेट करोगे, सो व्हाट विल हैपन हियर? अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो क्या होगा? इस वाले में निकालिए, BC में, व्हाट विल हैपन इन दिस BC? सो अगर मैं इंटरवल BC में चेक करूं, BC इंटरवल में, तो यहाँ पे ये वाला एंगल स्लोप होगा कि ये वाला एंगल स्लोप होगा? इनर वाला कि आउटर वाला स्लोप? Outer. आउटर, बिल्कुल सही। स्लोप मेरा आउटर हो जाएगा इस केस में, ये एंगल मेरा स्लोप होगा, एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स नेगेटिव, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो नेगेटिव भी होगा। सो कैन वी से कि माइनस ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ V max by T2? माइनस क्यों किया वो समझ रहा है? क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन, Acceleration. हाँ, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन माइनस, और ये ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई। So this minus and minus sign will get cancelled. So what we can say, beta is equal to V maximum by T2, or can we say beta कि T2 will be equal to V maximum by beta? Yes, sir. Okay. अब देखो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मेरा टोटल टाइम है, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, कि जो मेरा टोटल टाइम है T1 plus T2 that is equal to T. So can we say that T will be equal to T1 plus of T2? बोल सकते हैं ना हम लोग? So T is equal to T1 मेरा था V maximum by alpha, और T2 मेरा था V maximum by beta. So T is equal to V maximum को अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या आ जाएगा? 1 by alpha plus 1 by beta. So T max will be equal to V maximum into beta plus alpha by alpha into beta.
So can we say that V maximum will be alpha into beta into t by alpha plus beta. Is it clear? समझा बेटा? धारा? Yes, sir. Okay. Very good. Asan Mayur. तेजस को clear. Mansi. Yes, sir. Okay. Clear everyone? Clear है कि tough हो गया? सिंपल किया है और कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है यहाँ पे? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये यूज किया है कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है. दैट इज व्हाट वी हैव यूज्ड हियर. तो पहले मैंने इस केस में स्लोप निकाल लिया. वन सेकंड. सो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले इस केस में स्लोप निकाला. इस इंटरवल में स्लोप निकाला ए बी में. बाद में मैंने बीसी में स्लोप निकाला और बस उसको प्लेस कर दिया. इज इट क्लियर मयूर? Yes, sir. हुजैफ क्लियर है? बेटा आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझा क्या किया मैंने? अब देखो मुझे आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है. कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट इस केस में? वेरी गुड. तो क्या हम एक काम कर सकते हैं क्या कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट ना. Displacement. Yes, sir. ये वाला एरिया निकाल दो A1 और ये एरिया निकाल दो A2. So can we say that displacement will be equal to area A1 plus of A2, है ना? A1 एरिया और A2 एरिया को आप क्यूमुलेटिवली ऐड कर दो तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा which is A1 plus A2. Implies displacement S is equal to एरिया इसका कितना हो जाएगा? हाफ इंटू V max इंटू T1. ये तो T1 है आपका. So will it be equal to half into V maximum into T1 plus area A2 कितना हो जाएगा? हाफ into V maximum into T2 क्योंकि ये इंटरवल में टाइम मेरा T2 था. हाफ into V maximum into T2. हाफ into V maximum को कॉमन कर दिए. S is equal to half into V maximum bracket T1 plus of T2. Now T1 plus T2 is nothing but that is equal to T. So अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे so displacement will be equal to half into V maximum into T और V maximum आपको ऑलरेडी मालूम है. So displacement will be equal to half into alpha into beta by alpha plus beta into T into T. So can I say कि जो मेरा displacement होगा वो alpha into beta into T square by 2 bracket alpha plus. Is it clear everyone? Calculation समझा सभी को properly? Sir, वो T into T. हाँ S is equal to. हाँ displacement is equal to ये समझा बेटा एरिया A1 plus A2. Yes, sir. वो समझा सर. वो T into T लिया है ना सर आपने? हाँ ये देखो ना V max में एक ऑलरेडी T था और Yes, एक sir. ये T1 plus T2 T. समझ गया सर. गुड क्वेश्चन है. आसान बट अच्छा सवाल है. पहली बार करोगे तो आपको अच्छा लगेगा. क्लियर? आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. इसको एक और मेथड से कर सकते हो. सिंपली काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लगा के भी आप इसको चाहोगे तो यू कैन सॉल्व इट. बट मेरा सजेशन हुआ कि ग्राफिकल वे से भी आप इसको देखो कैसे डील करना है. ओके देखिए मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का दो. हाँ सर्विस बोलो बेटा. सर दूसरा वाला करके दिखाओ ना मेथड से. सेकेंड अप्रोच से क्या? हम्म. सी सेकेंड अप्रोच से भी इसको कर सकते हैं बाय यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशंस. कैसे करोगे? उसी क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड.
लेकिन वो बता दूंगा तो फिर तुम लोग इस पे ध्यान देगा नहीं। ऑल्टरनेट मेथड, सो पार्टिकल यहां से मूव करना चालू किया था। मैंने क्या बोला, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था। सो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो गया। लेट मी से कि ये मेरा ए और बी पे आ गया, जहां पे मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम था, और इसके बीच में ये एक्सेलरेट कर रहा था अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। बाद में डी एक्सेलरेट करने लगा अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये आप सी पकड़ लो, और फाइनली वो रेस्ट में वापस आ गया। यही था ना क्वेश्चन में सर्वेश? यस सर। ओके मैंने आपको बोला था कि लेट्स से कि एक्सेलरेट करने वाला टाइम मेरा t1 है और डी एक्सेलरेट करने वाला टाइम मेरा t2 है। लेट्स अज्यूम लाइक दिस। सो ए से बी तक वो एक्सेलरेट कर रहा था। एक्सेलरेट करने वाला टाइम हमने t1 कैलकुलेट किया, और ये डी एक्सेलरेट करने का जो टाइम था दैट वी हैव टेकन t2, और मेरा पूरा टाइम t हो गया। सो अगर आप इंटरवल ए बी के लिए डिस्कस करोगे, कैन बी यूज v इज इक्वल टू यू प्लस ए बी इंटरवल में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा Yes, एक्सेलरेशन sir. कांस्टेंट। यूज करो जरा ए बी इंटरवल में। सो बोलो ए बी इंटरवल में व्हाट इज माय इनिशियल वेलोसिटी? 0 ना? 0. हाँ, 0. और फाइनल वेलोसिटी आपका v मैक्सिमम। सो v मैक्सिमम इज इक्वल टू 0 अल्फा इंटू t1। सो क्या मुझे v मैक्सिमम मिला अल्फा t1, और t1 कितना मिल गया? इज इट इक्वल टू v मैक्सिमम बाय अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये BC इंटरवल में भी देखिए। सो यहाँ पे भी हम लगा देते v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस वाले इंटरवल में भी, और यहाँ पे आपका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आपका v मैक्सिमम हो गया, रिटार्डेशन आपके पास है माइनस बीटा इंटू वॉट t2। सो फ्रॉम हियर t2 कितना आ जाएगा बेटा? इज इट इक्वल टू v मैक्सिमम बाय बीटा। तो क्या t1 और t2 आपको ऐसे मिला? अब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि आपका टोटल टाइम ऑफ मूवमेंट था t, एंड दिस t वाज इक्वल टू t1 प्लस ऑफ t2। सो अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे t कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू v मैक्सिमम बाय अल्फा प्लस और v मैक्सिमम बाय बीटा इम्प्लाइज t। अगर मैं v मैक्सिमम को कॉमन ले लूं, विल इट बी इक्वल टू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, और क्या मेरा t इस केस में हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू बीटा प्लस ऑफ अल्फा बाय अल्फा इंटू बीटा, और कैन वी से कि v मैक्सिमम इज अल्फा इंटू बीटा इंटू t बाय अल्फा प्लस ऑफ बीटा। हो गया सर? अब मुझे एक बात बताओ सर्विस, कौन सा मेथड ज्यादा इजी है, पहला वाला कि दूसरा वाला? विच वन इज मोर इजी, फर्स्ट अप्रोच या सेकंड अप्रोच? सर मुझे सेकंड ज्यादा इजी लगा। मुझे मालूम था, इसलिए मैं सेकंड नहीं बता रहा था कि आप खुद से इस पे हिट करो। सेकंड बता दूंगा तो फर्स्ट पे तुम लोग ध्यान देगा नहीं। एक्चुअली मुझे ये अप्रोच ही सिखाना था आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑफ कोर्स आपको ये अप्रोच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत इजी है और बड़े बड़े क्वेश्चंस में बहुत काम का है। इसलिए प्लीज गो थ्रू दिस अप्रोच ऑल्सो, इससे भी देखो, ये तो है ही हमारे पास। ओके, क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes, sir. ठीक है, क्या क्वेश्चन बना रहा था मैं? मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते इसमें। Let's have like this. हाँ, याद आ गया। मान लो इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पे, राइट, और इस एक्सिस पे वेलोसिटी टाइम है मेरे पास में। सो हियर वी आर हैविंग टाइम, और इस एक्सिस पे मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और मैं आपको दो ग्राफ बना के दे रहा हूँ। द वन ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, और दूसरा ग्राफ ऐसे है। ठीक है, ये मेरा पार्टिकल 1 का ग्राफ है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का।
और ये ग्राफ मेरा पार्टिकल ए का है और इसका वेलोसिटी है VA मीटर पर सेकेंड, और ये ग्राफ मेरा पार्टिकल बी का है और इसका वेलोसिटी को डिनोट किया है VB मीटर पर सेकेंड से। एंड इट इज गिवन कि ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा दिस इज 30 डिग्री, और ये जो टोटल एंगल फॉर्म कर रहा है दिस इज माय 60 डिग्री, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रेशियो ऑफ VB बाई VA, करिए। फाइंड रेशियो ऑफ VB बाई VA मतलब वेलोसिटी ऑफ B और वेलोसिटी ऑफ A का क्या होगा, उसका रेशियो आपको बताना है। चलो पहले मुझे एक आप बात बताओ, ये जो दोनों ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, पार्टिकल ए के लिए ग्राफ बनाया था और पार्टिकल बी के लिए ग्राफ बनाया है, ये दोनों ग्राफ को देख के क्या समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, कैसे बेटा, ये कैसे डिसाइड किया भाई? एक मिनट मयूर, कैसे डिसाइड किया आपने? जीरो है। हाँ, मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा कि कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट। देखो 2-3 पॉइंट्स निकाल लिया हमने। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ को देखते बराबर ही हमें समझ में आ गया कि इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज जीरो, एंड एज वी कैन सी कि अगर मेरा एक्सेलरेशन इस केस में जीरो है इसका मतलब कि वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ क्या देता है मुझे? वेलोसिटी। Velocity. इस केस में स्लोप कितना होगा फर्स्ट वाले के लिए? अगर मैं पार्टिकल ए के लिए लिखूं तो स्लोप कितना होता है? इज इट इक्वल टू tan थीटा? और इस केस में थीटा कितना बन रहा है? मैंने आपको 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि स्लोप के लिए यू हैव टू मेजर फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 30 डिग्री। यस, सुपर। सो प्लेस कर देंगे हम वेलोसिटी ऑफ ए will be equal to tan of 30. Now what is the value of tan 30? 1/√. 1/√3. So क्या मेरा velocity of A आ गया 1/√3 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली सेम वे में अब B का वेलोसिटी बताइए। √3. हाँ, so velocity of B कितना हो जाएगा? अगेन tan 30। अब देखो B जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो मेरा 60 डिग्री है। So क्या वेलोसिटी ऑफ B will be tan 60 डिग्री and velocity of B is what beta? √3 मीटर पर सेकेंड। हो रहा है? आपसे क्या पूछा है मैंने? I have asked you to get the ratio of velocity of B by velocity of A. So is it equal to √3 divided by 1/√3? Implies velocity of B by velocity of A, is it equal to velocity of B by velocity of A? अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे so is it equal to 3/1? You can get the ratio. So अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, implies कि velocity of B is to velocity of A and that is equal to 3:1. So finalize. हाँ करेक्ट। नहीं मयूर, रेशियो पूछा बेटा इसलिए यूनिट नहीं होगा, 3:1 होगा। धारा का आंसर सही है। Is it clear everyone? रेशियो पूछा ना तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, so they will get cancelled. So ultimately आपको रेशियो बताना है, वेलोसिटी नहीं। So हम यूनिट नहीं यूज करेंगे यहाँ। Am I clear everyone? समझ में आया सभी को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट, ये JEE मेंस का क्वेश्चन है। आपको कुछ क्वेश्चन को अच्छे से सोच समझ के प्लॉट करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल को यहां से मैंने ड्रॉप कर दिया। लेट्स से एक पार्टिकल को मैंने यहां से ड्रॉप किया है सच दैट इसका हाइट 80 मीटर है। सो इस पार्टिकल को मैंने 80 मीटर से ड्रॉप किया है। डाटा में चेंज कर रहा हूं ऑफ कोर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ऑब्वियस है। सो बॉल को मैंने ड्रॉप किया 80 मीटर हाइट से। अब क्या होगा कि जब ये बॉल यहाँ पे आएगा बेटा तो ग्राउंड को टकराएगा, और क्या टकराने के बाद ये बॉल वापस ऊपर जाएगा? यस सर। Yes, टकराएगा। sir. अब कह रहा है क्वेश्चन, ये टफ सवाल है, अच्छे से सोच समझ के करेंगे। सो बॉल इधर से आया, ग्राउंड को टकराया, टकराने के बाद बॉल ऊपर गया। अब जब बॉल ये ऊपर गया तो सिर्फ ये 40 मीटर तक ही जा पाया, मतलब पहले से हाफ ही जा पाया। ऑब्वियस बात है, थोड़ा एनर्जी का लॉस हो जाएगा। फिर ये वापस आएगा, फिर टकराएगा, फिर हाफ जाएगा, मतलब 40 का हाफ, अभी नेक्स्ट टाइम 20, फिर 10, और फाइनली ऐसे रुक जाएगा। आपसे पूछा गया है ट्रेस द ग्राफ बिटवीन velocity and time up to second collision. Trace the graph between velocity and time up to second collision. सेकेंड कोलिशन तक वेलोसिटी और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ होगा, ये आपको प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करोगे? मुझे एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया था हाइट से, और ये पार्टिकल नीचे आ रहा, तो मैं कन्वेंशनली अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस हम लोग लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारा माइनस हो जाता है। अगर हम ग्राफ इसको प्लॉट करें, मुझे एक बात बताओ बेटा कि जब ये पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, जब ये पार्टिकल यहां से नीचे आ रहा है, तो क्या इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है इनिशियली वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव, या कितना था? 0। 0. सुपर, क्योंकि पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया है। सो अगर आपने पार्टिकल को ड्रॉप किया है, सो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 था। रिलीज कर रहा है मतलब इनिशियली वो रेस्ट में था। अब जब ये पार्टिकल नीचे आने लगा, तो जब ये पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आते जा रहा है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Increase. लेकिन ये इंक्रीज पॉजिटिव साइड में हो रहा है कि नेगेटिव साइड में हो रहा है? Negative. Negative side. एक बात तो मुझे क्लैरिटी हो गया कि भैया पार्टिकल यहाँ से नीचे आएगा और नीचे आते जाएगा और इसका वेलोसिटी नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर कुछ ऐसा। ओके, अब जब ये ग्राउंड पे टच करेगा, यहाँ पे देखो ये ग्राउंड पे टच करेगा, तो जब ये ग्राउंड पे टच कर रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? जरा निकालते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सो इंप्लाइज v स्क्वायर, इनिशियली तो ये 0 था, इसका ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 80। मैं दोनों माइनस में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ माइनस साइन। So implies v square will be equal to 1600. So v will be equal to under root of 1600. तो क्या मेरा वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड का है, एंड माइनस में आएगा ऑफ कोर्स। सो क्या है मेरा वेलोसिटी यहाँ पे आ गया, इज इट इक्वल टू माइनस ऑफ 40 मीटर पर सेकंड बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सो ये वेलोसिटी मेरा हो गया माइनस ऑफ 40 मीटर। ओके ग्रेट। अच्छा, इसको ग्राउंड पे आने में कितना वक्त लगेगा? How much time it will take to reach ground? कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे आने में? किसी से भी निकाल सकते हो, s is equal to u। हाँ 4 सेकंड। सुपर, कैसे निकाला धारा आपने? V equals to U plus AT. v is equal to u plus of 80। v आपका 40 था, इनिशियली वो 0 था, एक्सेलरेशन 10 into t, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10t is equal to 40 आ रहा है, इंप्लाइज जिसको टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल टू 4 सेकंड। ग्राउंड पे आने में 4 सेकंड का टाइम। अब क्या होगा? अब जैसे ये टकराया, तो टकराने के बाद इसका वेलोसिटी, टकराने से पहले तो वेलोसिटी नीचे की तरफ था, नेगेटिव था, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। Positive. Positive. अब ऊपर जाएगा। अच्छा,
टकराने के पहले इसका वेलोसिटी था 40 मीटर पर सेकेंड, क्या टकराने के बाद भी 40 ही होगा कि कुछ और हो जाएगा? कम ये तो होगा। डिक्रीज डिक्रीज कुछ और हो जाएगा। कुछ तो कम होगा ना, तभी तो आधा हाइट जा रहा है। अगर सेम रहता तो वापस उसी हाइट पे जाता, लेकिन वो पहले से हाफ हाइट पे जा रहा है, मतलब वेलोसिटी पहले से तो कुछ कम होगा। आया ना? मुझे एक बात बताओ, क्या ये सब लोगों को ये बात क्लियर है कि टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी वाज नेगेटिव, यस सर, एंड आफ्टर जैसे ही वो टकराया ग्राउंड के साथ, टकराने के बाद ये बॉल अब ऊपर जाने लगेगा। अब जैसे ही बॉल ऊपर जाने लगेगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सो कोलिजन के पहले वेलोसिटी वाज नेगेटिव, कोलिजन के बाद वेलोसिटी बिकेम पॉजिटिव। एम आई क्लियर? यस सर, यस सर। अब देखते हैं भाई, टकराने के बाद मान लेता हूं कि इसका वेलोसिटी u हो गया, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, और ये यहाँ से 40 मीटर ही जा रहा है, पहले से हाफ जा रहा है। तो जरा यहाँ पे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो फिर से जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका v हो जाएगा 0, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 माइनस 10 एक्चुअली, इंटू ये हो जाएगा 40। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, सो इम्प्लाइज u स्क्वायर विल बी इक्वल टू 800। So u will be equal to under root of 800, मतलब 20 root 2 है ना, 20 root 2 होगा, और root 2 होता है 1.4। so क्या ये approximately 1.4 अगर आप करोगे तो क्या ये इसका वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली। आई एम सेइंग, देखो ना, root 2 होता है 1.414, मैं 1.4 ले लेता हूँ, तो 20 into 1.4 मतलब 14 into 2 will it be equal to 28 मीटर पर सेकेंड? Yes, sir. यस सर। ग्रेट। अब जैसे ये टकराया, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी अब क्या हो गया, देखो ये कोलिजन से पहले का इसका वेलोसिटी था, जैसे ये कोलाइड किया इसका वेलोसिटी अब यहाँ चला गया, और इसका वेलोसिटी अब कितना हो गया 28 मीटर पर सेकेंड। सो ये वेलोसिटी 40 से ड्रॉप होके, हाँ या ना एवरीवन, 28 देखो कोलिजन के जस्ट पहले वेलोसिटी मेरा नेगेटिव था और 40 था, कोलिजन के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया और 28 चला गया, तो देखो यहाँ से ऊपर चला गया अचानक से। दिस वाज बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। एम आई क्लियर? यस सर, ओके। Yes, sir. अब क्या होगा, पार्टिकल किधर जाएगा? ऊपर। अब जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कोलिजन के बाद की बात कर रहा हूं मैं, सो कोलिजन के बाद जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। ऊपर जा रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज। अरे भाई पार्टिकल जब ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो जैसे सर इसका डिक्रीज हो, डिक्रीज हो, से डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. ओके, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, और घटते घटते ये इसका वेलोसिटी वापस 0 आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद। कितना टाइम लगेगा इसको 0 आने में? कितना टाइम लगेगा इसको 0 आने में? देखो ऐसे करो ना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। क्या ये जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा फाइनल? सो अगर मैं v के जगह पे 0 रख दूं, इनिशियल आपको पता है 28 प्लस एक्सेलरेशन आपको मालूम है -10 इंटू टी, सो कैन वी से दैट 10 इंटू टी इज इक्वल टू 28, और क्या हम बोल सकते हैं दैट t विल बी इक्वल टू 2.8 सेकेंड्स? यस सर, Yes, sir. 4 सेकेंड था, 2.8 सेकेंड और ज्यादा, तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू 6.8 सेकेंड? होगा ये 6.8 सेकेंड? Yes, sir. अब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, अब उसके बाद ये बॉल किधर आएगा, नीचे। जब ये बॉल नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? Increase. इंक्रीज, नीचे आ रहा है ना बॉल, तो जब ये बॉल मैक्स, क्योंकि 6.8 सेकेंड पे तो ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे था, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद ये बॉल किधर आएगा, नीचे। जब ये बॉल नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। Increase. पॉजिटिव साइड में कि नेगेटिव साइड में? Negative. नेगेटिव। अब देखो यहाँ के बाद ये इंक्रीज करने लगा अगले टाइम तक, ओके, और इंक्रीज करके वेलोसिटी वापस से थोड़ा कम लेता हूँ मैं। हाँ, ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते ये वेलोसिटी वापस कितना हो जाएगा, टकराने के पहले, दूसरी बार टकराने के पहले, will it be equal to minus of 28 मीटर पर सेकेंड?
हाँ या ना? और टाइम कितना लगेगा? 6.8 प्लस 2.8, 6.8 प्लस 2.8, 16, 6, 2, 8, 1, 9, will it be equal to 9.6 सेकेंड्स? देखो ना, वापस आने में अगर उसको ऊपर जाने में 2.8 सेकंड लगा है, तो क्या उसको वापस आने में भी 2.8 लगेगा? तो 6.8 में आप 2.8 को ऐड कर दीजिए, तो 8 और 8 16, में एक 9, 6, 2, 8, 1, 9 बराबर। तो क्या उसको 9.6 सेकंड लगेगा टोटल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो ऐसे ग्राफ बढ़ते जाएगा टिल इट कम्स टू रेस्ट। तो जेई ने यहीं तक नहीं पूछा था, जेई ने उसको शायद 4-5 पूछा था, फिर इसके बाद और डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते 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 फाइनली वो रुक जाएगा। मैं आपसे सिर्फ 2 ही करवा रहा हूँ। पहले मुझे सब लोग अच्छे से बताओ, इज इट क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? और ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. धीरे धीरे वो ग्राफ पहले बड़ा था, फिर ग्राफ थोड़ा छोटा होगा, फिर छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होते 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 फाइनली वो खत्म हो जाएगा। तो देखते हो आप जब बॉल को गिराओगे ना, तो आप बॉल को गिराओगे थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, ऐसे बाउंस करते 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 फाइनली वो रुक जाएगा। दैट इज इट। चले मूव अहेड, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, तो गुड क्वेश्चन। पिछला वाला रिकॉर्डिंग देख के एक बार दोबारा ट्राई करना, इसको खुद से ट्राई करना। और एक आखिरी में एडवांस का एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा। ठीक, देखिए मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दे रहा हूं। हियर वी आर हैविंग टाइम एंड हियर वी आर हैविंग वेलोसिटी। और वेलोसिटी मेरा मीटर पर सेकेंड में है और टाइम सेकेंड्स में। तो ग्राफ कुछ ऐसा है। ये आपका वेलोसिटी दिया मैंने 40 मीटर पर सेकेंड का, ये टाइम दिया है 2 सेकेंड्स का, दिस इज 4 सेकेंड लेट से, और ये टाइम है 6 सेकेंड का। आपसे पूछा है मैंने ट्रेस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसको देख के आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं दे रहा हूं। ट्रेस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। मुझे बताओ बेटा, पहले इस इंटरवल में लेट मी नेम दिस, ये पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं, ओ, ए, बी और सी। ओके, वेरी गुड मयूर, मैं भी करता हूं बेटा। देखते हैं, पहले मुझे बताइए इस ओ ए इंटरवल में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. हाँ, वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज करा तो ऑब्वियस सी बात एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम लेता हूं मैं सेकंड्स में, एंड हियर वी आर हैविंग एक्सेलरेशन and that to be in meter per second square. Okay, तो पहले अगर मैं इस OA इंटरवल में देखूं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा इस OA इंटरवल में? 20 मीटर पर सेकेंड। Okay, हाँ बराबर। कैसे करोगे? ये स्लोप निकाल दो, या फिर आपको ये भी पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मेरा 40 था, इनिशियल मेरा 0 था, so एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 40 माइनस ऑफ 0 बाई टाइम 2 सेकेंड्स, so implies acceleration will be equal to 40 by 2, that is 20. So क्या मेरा एक्सेलरेशन इस केस में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो गया 2 सेकेंड्स तक, और कांस्टेंट रहेगा। सो फ्रॉम हियर
acceleration will be constant up to 2 seconds. और ये कितना होगा? ओके, अब मुझे बताइए 2ab इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0. 0. कैसे डिसाइड किया धारा? ab में 0 होगा एक्सेलरेशन? स्ट्रेट लाइन में Velocity एकदम straight है ना, horizontal. हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये बोलना ज्यादा प्रिसाइज रहेगा। ab इंटरवल में वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इंप्लाइज कि एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहां से लेकर यहां तक अप टू 4 सेकेंड एक्सेलरेशन विल बी 0। इस इंटरवल में, BC इंटरवल में, सो BC इंटरवल में कितना होगा एक्सेलरेशन? इज इट इक्वल टू v माइनस u बाई टी? अब आप देखो इस BC इंटरवल में अगर आप देखोगे आपका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया और इनिशियल आपका 40 है, ऐसे जा रहे हैं ना, 4 से 6 जाएंगे, तो फाइनल मेरा 0, इनिशियल आपका 40। सो क्या एक्सेलरेशन हो माइनस जाएगा? 20 हाँ, 0 माइनस 40 बाई 2। So can I say acceleration will be equal to minus of 40 by 2, 20. So क्या होगा? Minus of 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So अगर हम प्लॉट कर देंगे लास्ट इंटरवल में ग्राफ इसको, so this will be something like this. So this is from 4 second to 6 second, और ये कितना हो जाएगा? Minus of 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Am I clear? Probably सबको समझ में आ गया ढंग से? यस सर Yes, sir. ठीक, so we have completed with the graph. मैं क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ कुछ और, आप ट्राई करोगे इसको ग्राफ के बेसिस पे। आज का लेक्चर समझा बेटा सबको ढंग से? यस सर Yes, sir. ठीक, we'll wind up for today. We'll discuss remaining Sir. part और लेक्चर। बोलो, तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज मुझे सेंड किया गया? सर ग्रुप में। अच्छा, हाँ 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 हाँ, याद आ गया, याद आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि एक पार्टिकल फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए वो v1 से ट्रेवल कर रहा था, ये वाला क्वेश्चन ना? यस सर ओके, सो लेट्स से कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है C। तो पार्टिकल क्या कह रहा है कि पहले हाफ डिस्टेंस के लिए, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए, द पार्टिकल वाज ट्रैवलिंग विद v1 मीटर पर सेकंड, पहले हाफ डिस्टेंस के लिए। सर हाँ मैंने x/2 लिया है, टोटल हाँ, डिस्टेंस x लिया है और हाँ, हाफ डिस्टेंस x/2। ले लेता हूँ, मैं भी वही ले लेता हूँ, जो तुम्हारा मन करे वो ले। रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस के लिए वो ट्रैवल कर रहा है v2 मीटर पर सेकंड, बरोबर? यस सर तो फर्स्ट हाफ के लिए v1 से, नेक्स्ट हाफ के लिए v2 से। नाउ मान लेते हैं कि इस इंटरवल में टाइम t1 लग रहा है, इस इंटरवल में टाइम t2 लग रहा है। आपसे एवरेज स्पीड पूछा है मैंने, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यस सर नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू x/2 प्लस x/2। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या है? x आएगा टोटल डिस्टेंस। यस सर ये इंटरवल में AB कर देता हूँ। सो अगर आप AB इंटरवल में देखोगे, सो फॉर AB इंटरवल ऑफ कोर्स वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो AB इंटरवल में मेरा जो स्पीड हो गया दैट इज v1, डिस्टेंस हो गया x/2, टाइम लग रहा है t1। तो क्या इस केस में जो टाइम होगा विल इट बी इक्वल टू x/2 ऑफ v1? यस सर लेट्स होल्ड दिस। इन द सेम मैनर अगर मैं BC इंटरवल में जाता हूँ, ये वाले इंटरवल में, और अगर मैं BC इंटरवल में वापस से वही रिलेशन यूज करता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इन BC इंटरवल। सो BC इंटरवल में मेरा जो स्पीड है बेटा दैट इज v2, डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने x/2 और टाइम मैंने लिया t2। सो क्या मुझे t2 मिलेगा? विल इट बी इक्वल टू x/2 ऑफ v2, राइट? सो मैंने t1 और t2 कैलकुलेट कर लिया। नाउ व्हाट विल बी माय टोटल टाइम? t1 प्लस t2 कैपिटल T से डिनोट करेंगे, t1 प्लस t2। सो दिस विल बी x/2 ऑफ v1 प्लस x/2 v2। x/2 को कॉमन ले लो फ्रॉम हियर। सो अगर मैं x/2 को कॉमन ले लेता हूँ क्या आ जाएगा? 1/v1 प्लस 1/v2। सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू x/2 ब्रैकेट v2 plus v1 by v1 into v2, that I have taken the LCM here, so v1 into v2 or v2 plus v1, right?
Yes, sir. अब देखिए आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम है दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था विच इज x, टोटल टाइम आपके पास ये था, पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे. सो इम्प्लाइज दैट एवरेज स्पीड will be equal to total distance x over x by 2 into v1 plus v2 by v1 into v2. This x and x will be cancelled. This will be shifting upward. So average speed will be equal to 2v1 into v2 over v1 plus v2. Am I clear? Yes, sir. Clear. ठीक है. x by 2 ले लो, x ले लो, जो आपको पसंद आता वैसे. ठीक है. समझ में आया ढंग से? Thank you, sir. Okay. Yes, sir. ठीक. We'll wind up for today. We'll discuss in the coming lecture. अच्छा हाँ सॉरी आई फॉरगॉट सर्विस में भेजता हूँ. आई विल सेंड इट टुडे. मुझे एक और रिमाइंड कर दो सर्विस टू सेंड दैट. आई विल सेंड इट. Yes, sir. ठीक है. We'll wind up for today.